Okay. So today we are going to discuss number systems. Have you ever studied any number system? Say yes or no. No, sir. No, No? sir. No. I think you all are telling lie. Huh? Sir, that number system that we are Uh-huh. studying. I ask Sir, वो any तो number पढ़ा हुआ है। system, हाँ जी, हाँ Yes, जी, sir, सर, we वो पढ़ा studied हुआ है। that. right? So you have studied all the decimal number systems. Agreed? Yes, sir. Okay. Can you tell me what is the base of this number system? सर 10 होता है 10 होता है. What does base represents? Sir, numbers which मतलब सर वो Number of possible digits, right? Yes. So in decimal number system, you all know that you are having 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the number starts from 0, it go up to 9, and there are total 10 numbers in decimal number systems, right? Now, if suppose I write a number 3, 5, 6. So how you will read this number? 356 356. Exactly. So it means what I have done is that I have multiplied 3 with 100, 5 with 10, and 6 with 1, 1. or 10 is to over 0. I can write in general. Right? So it means I can rewrite this 3 into 10 is to power 2 plus 5 into 10 is to power 1 plus 6 into 10 is to power 0. So likewise, if I want to write any number in a decimal number system, it indicates that every location of the digit represents its value, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये राइट मोस्ट डिजिट था उसकी वैल्यू कितनी 10 is to power 0 थी उसकी 0 sorry, then 10 is to power 1, then 10 is to power 2, and so on. Likewise, if suppose I write number 0.25, so what does it indicates? बोलो. So 25 into 10 is to power minus 2. Okay, वो तो ठीक है, उस एंगल से बोल दिया. Or I can write what? This Two- number as 2 into 10 is to power minus 1. plus 5 plus into 10 power 5 minus into 10 is to minus. Agreed? power minus 2 Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब Yes, क्या हुआ, जब हम पॉइंट से जहां हमारा डेसिमल पॉइंट है उस पॉइंट से अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं, देन पावर्स आर व्हाट 10 is to minus 1, 10 is to minus 2, 10 is to minus 3, and so on. And to the left side, we are going from 10 is to 0 to 10 is to power n. So in general, if I write in decimal number systems, how I can write? That is, if suppose this is my decimal point, here the weight is 10 is to power minus 1, 10 is to power minus 2, 10 is to power minus 3, and so on. And here on the left side, 10 is to 0, 10 is to power 1, 10 is to power 2, 10 is to power 3, and so on. है ना? तो कोई भी नंबर मेरे को दे दो, आई कैन सिंपली टेल कि इसकी वैल्यू कितनी है. सपोज आई राइट 3456.234. सो एवरी डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका कुछ वेट है हर एक पोजीशन का, है ना? सो वी सिंपली मल्टीप्लाई विद दैट पर्टिकुलर नंबर, लाइक हियर 3 मल्टीप्लाई विद दिस, है ना? And you can solve it. If I give you some, you can say, so 3 into 10 is to power 3 plus 4 into 10 is to power 2 plus 5 into 10 is to power 1 plus 6 into 10 is to power 0 plus 2 into 10 is to power minus 1 plus 3 into 10 is to power minus 2 plus 4 into 10 is to power minus 3. सर ये न्यू चैप्टर शुरू हुआ है. बिल्कुल न्यू चैप्टर शुरू हुआ जी. तो ये न्यू नहीं, आपके लिए बहुत ओल्ड है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना? तो अभी हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बेस आपको पता है कि 10 होता है और नंबर 0 से लेकर 9 तक होते हैं. एंड यूजिंग दीज नंबर्स यू कैन बिल्ड अप एनी नंबर. और हर एक नंबर जहां पर वो प्लेस होता है, 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, अकॉर्डिंगली उसका वेट होता है ना? तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि किसी भी नंबर को इन जनरल आप इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इतना सबको पता था. अब जो हम करेंगे नया वो क्या है? We will study different types of number systems. One is binary number system. One will study octal number system. One will study hexadecimal number system.
Excuse me, sir. हाँ जी. I'm sorry to interrupt you, but हाँ. Karanveer is waiting is in the waiting room. Please let him in. See, I have not applied any waiting room. Just tell that person that you have to log in via Thapar's email ID. Okay, sir. Okay, thank you. Okay. So these three number systems we are going to study today, right? So binary number systems. So in binary, whenever it comes to binary, so binary refers to two levels. That is either 0 or 1, right? Likewise, if I talk about the word octal, octal stands for 8, है ना? So there are 8 levels starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Then coming to hexadecimal. Hexadecimal means hexa plus decimal, है ना? तो डेसिमल तो आपको पता है ऑलरेडी पहले 0 से 9 तक. तो हेक्सा में क्या होता है? A, B, C या 6, D, E, F. These are 6 numbers and along with 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेसिमल नंबर तो यहाँ तक आ गई. 9 के बाद मींस A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? नंबर 10. Number 10. B represents 11, C represents 12, D represents 13, E represents 14 and F represents 15. तो इसका मतलब क्या हुआ? हेक्साडेसिमल में आपके पास लेवल्स कहाँ होंगे? 0 से लेके 15 तक लेवल्स हुए. टोटल कितने हो गए? 16. So depending upon the number of levels, we will decide the base or radix, right? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना हो जाएगा? बताओ शाबाश. There are only 2 levels, है ना? तो it means base is 2. Regarding octal number systems, what is the base? 0 to 7. 8. And regarding hexadecimal कितना होगा बताओ? 16. 16. So पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल तीनों का बेस क्या है. हमें इस बात की क्लैरिटी है सबको कि बेस 2 मींस बाइनरी, बेस 8 मींस ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 16 मींस हेक्साडेसिमल नंबर. Hexadecimal system. Yes, sir. Right. Now let's try to write down some numbers. अब बाइनरी में हमने कहा कि let's study first बाइनरी. अब बाइनरी नंबर सिस्टम में कह रहे हैं there are only 2 levels, 0 and 1. अब क्वेश्चन ये आएगा, इसका मतलब अगर 0 और 1 है, अगर सपोज करो मुझे नंबर लिखना है 23, है ना? तो मैं कैसे लिखूं 23? या मान लो मुझे लिखना नंबर 2, 23 बहुत बड़ी, लेट्स नंबर राइट नंबर 2. तो यहाँ पर तो सिर्फ 0 और 1 की ऑप्शन है. तो जस्ट सर रिकॉल 2 को बैक. 2 से डिवाइड करा देंगे. क्या करेंगे? 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक कराएंगे. अब वो कैसे So 1 करेंगे? लिख दाएं फैक्टराइजेशन. फैक्टराइज. यस सर. दोबारा बोलो, क्या बोला? सर फैक्टराइज, इसके दाएं फैक्टर्स फैक्टराइजेशन निकालेंगे. कर देंगे इसकी. बिल्कुल ठीक बात बोली. तो अगर 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 को इसे डिवाइड किया हमने, उसी कितना आएगा? 2 1 से 2. What is the remainder? Remainder 0. 0. Then again divide with 2. Quotient with 0. Remainder is 1. So 1 into 0. तो मैंने इस साइड पे क्या लिखा है? रिमाइंडर. ठीक है. तो अब जब इसको रीड करना है, रीड कैसे करना है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो नंबर क्या बन गया मेरा? 1 0. and we will write in brackets and write here base 2. So this is the number equivalent to 2 of decimal. देख लो, जब मैं सही बेस 2 मतलब कि जब मैं ब्रैकेट लगा के नीचे सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट डिनोट्स व्हाट? बेस और रेडिक्स. तो मैंने क्या किया? एक नंबर था मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में, नंबर 2, राइट? उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल में, बाइनरी में विद बेस 2. वो क्या है? 1 0. और जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इफ इट इज इंटीजर पार्ट, अभी मैं इंटीजर की बात करूं खाली, अगर इंटीजर पार्ट है तो क्या करोगे? डिवाइड विद 2. right? Now if suppose I want to write a counting in binary, तो मुझे काउंटिंग लिखनी है बाइनरी में, कैसे लिखेंगे? लेट्स ट्राई इट. सपोज काउंटिंग हमारे डेसिमल में हमें आती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट्स इट कंप्लीट इट अप टू 15 कर देते हैं, सपोज करो.
तो जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो ही आएगा। जीरो ही आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको एक चीज इसको बताने से पहले बताता हूँ कि जब हम बाइनरी नंबर लिखते हैं या डेसिमल नंबर लिखते हैं तो डेसिमल में कैसा होता था हमारा कि जब काउंटिंग हमारे 0 से लेकर 9 तक होती थी तो व्हाट वी डू, विल टेक 10 हियर एंड टिल 19, ऐसे लिखते थे ना पहले डेसिमल में। फिर 20, 29, 30, 39। तो ये क्या चीज हो रही है, देख रहे ध्यान से कुछ? सर हम डेसिमल में जो डिजिट्स हैं उन्हीं को ही हम बार बार यूज करे जा Yes. तो इट मींस जो पहला 0 नंबर था, नेक्स्ट नंबर 1 यहाँ पर आ गया, उससे फिर हमने सारे कॉम्बिनेशन लिखे, यस है ना? सर। फिर नेक्स्ट डिजिट उठाया, उससे सारे कॉम्बिनेशन लिखे, फिर नेक्स्ट उठाया, उससे सारे कॉम्बिनेशन लिखे, लाइकवाइज वी कंटिन्यू। बट बाइनरी में क्या है? बाइनरी में वी आर हैविंग ओनली टू लेवल्स, 0 एंड 1, 1 है ना? तो अब क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव टू रीयूज देम अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको दोबारा यूज करूं तो क्या बनेगा? 1 0 1 1। देखो ना, 1 मैंने यहाँ लिया और पॉसिबल 0 था, पॉसिबल 1 था। Getting it? सर ये कैसे किया सर ये? देखो दोबारा बताना। दोबारा देखो, हमने जब डेसिमल नंबर सिस्टम करते थे हम क्या कहते थे कि पहले बच्चों 0 से लेकर 9 तक काउंट लिखो, फिर 9 तक नंबर खत्म हो गए, अब 1 उठाओ, फिर 0 से लेकर 9 तक लिखो। लेट मी राइट इट अगेन। 0 से लेकर 9 तक लिखा था तो हमने कहा कि उसका 1 लिखो, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। तो हमने क्या Yes, किया, sir. इस 1 को फिक्स रखा, है ना, और बाद में सारे 10 नंबर लगा दिए, ऐसे किया था ना? अब लाइक वाइज नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, 90 खत्म हो गया, अब 2 ले लो नंबर, 2 0 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन टिल 29। अब बाइनरी में क्या है Okay. हमारे पास? बाइनरी में सिर्फ दो ही लेवल्स है, 0 या 1, है ना? तो Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ कि पहला नंबर मैंने 0 लिखा, अगला नंबर 1 लिखा, अब मेरा मतलब एग्जॉस्ट हो गया वाला नंबर, है ना? तो मैं क्या करूंगा, 1 को यूज करूंगा। 1 के साथ मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है या 1 है, हाँ। तो बन गया मेरा नेक्स्ट नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो सर नंबर, 1 1 नेक्स्ट नंबर है ना हमारा फिर मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। Okay. अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा 1 1 लिखा या 1 0 लिखा, तो यहाँ पर जो 1 और 0 कौन सी प्लेस के ऊपर आ रहा है उसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था अभी, है ना? तो अब ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल में तो हमने निकाला था पीछे, कैसे निकाला था? बाय यूजिंग दिस थिंग, लेट मी गो बैक दिस वन, कि 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2, है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 10 व्हाट विल टेक इन बाइनरी? 0 and 1. 2। 2 बेस, देखो यहाँ पर जो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में वी टेक बेस एज 10, है ना? अब यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा बाइनरी में, ओनली 2। 2. तो अगर मान लो मैंने लिखा नंबर 1 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली पोजीशन है इसकी वेट कितना होगा, 2 की पावर 0. 0, इसका वेट कितना हो गया, 2 की 2 पावर की पावर 1. 1। तो अब नंबर कितना होगा निकालो, 2 की पावर 1 into 1 2. प्लस 2 की पावर 0 into 0, व्हाट इट कमिंग आउट टू बी 2। 2। तो हाँ जी, तो सर एक सेकंड, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे? सर, जो 3 है ये? जो इसकी अगली थी। अच्छा। हाँ हाँ सर, इससे एक स्टेप पीछे। हम्म, सर ये जो आपने 10 के नीचे जो उसकी सबस्क्रिप्ट 2 लिखी है और 2 के नीचे उसकी सबस्क्रिप्ट 10 लिखी है, मतलब बेस लिखा है, सर ये चीज मेरे को समझ नहीं आई। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा एक नंबर था मेरे पास 2 डेसिमल नंबर सिस्टम में, यस सर। डेसिमल का बेस कितना होता है 10। 10। तो मैंने सब, जब भी मैं लिखूंगा कोई भी नंबर विद सबस्क्रिप्ट, सपोज करो n लिख दिया मैंने, तो ये n क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या बेस है, इसका बेस का मतलब क्या, रेडिक्स क्या है? अगर डेसिमल Okay. नंबर सिस्टम में तो रेडिक्स 10 होगा और बाइनरी तो रेडिक्स 2 होगा, राइट? तो अब हमने क्या Okay. किया यहाँ पर कि हमने कहा एक 2 नंबर था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना तो क्या करो, उसके बेस से डिवाइड करो उस नंबर को। तो हमने 2 से डिवाइड करना शुरू किया, 2 1 से 2 आया, रिमाइंडर 0, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर 1। सो वी हैव टू मतलब डिवाइड, बाइनरी में उसका जो रेडिक्स होता है वो 2 2 होता है। 2 ये तो होता है, बताया जैसे था हम मैंने बेस में आपको, 10 यूज करते थे। ये देखो, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग ओनली 2 लेवल्स, 0 और 1, ओके सर। दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 2। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वी हैव दिस थिंग इज जस्ट द कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल टू इट्स इक्विवेलेंट
बाइनरी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर जो पिछले से पिछली स्लाइड थी सर, वो एक बार दिखाना सर। ये वाला, सर इसमें यस सर इसमें 3 4 5 6 आपने ये क्यों लिखा है सर नीचे? ये मैंने आपको क्या लिखा था, दिस इज 1 डेसिमल नंबर। अब इस नंबर को रीड कैसे करोगे आप? 3456 लिखोगे ना। यस सर। वो कैसे लिखा? 3000 मींस 3 10 to 3, यस सर। 400 मींस 4 10 to 2, यस सर। plus 50 means 5 to 10 to 1, plus 6 means 6 to 10 to 0. So I have just trying to relate you with the decimal number system, कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम किसी की वैल्यू निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है कुछ, यस सर। तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी, जैसे 3 को मल्टीप्लाई 1000 के साथ, 4 को 100 के ठीक है साथ, सर। 5 को 10 के साथ। यस लाइकवाइज अगर पॉइंट्स की राइट साइड पे है तो 10 to -1 -2 -3 so on. यस सर। यस सर। That was just taken for an example to explain you that how you are computing in decimal number system. Likewise, Okay, when sir. you're computing in binary number system, if you're given number like this 1 0, right? So depending upon the location, so the rightmost digit is having the weight of 2 raised to power 0, is because here the base is 2. So instead of Yes, sir. 10, we replace with 2. Right? Likewise, if there is next bit, then we write 2 raised to 1. And accordingly, we multiply 2 raised to 1 into 1 plus 2 raised to 0 into 0, coming out to be 2. क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो, अभी अभी बहुत कुछ करेंगे, देखते रहो, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी ओर। अभी हमने क्या करना है कि अब हमने मान लो कोई नंबर आपको देता हूं मैं 1011 सपोज, कहता हूं कि इस 1011 का क्या वैल्यू है, तो आप क्या कहोगे सर, अगर ये 1011 गिवन है, इट मींस इसकी वेट कितना है 2 raised to power 0, इट्स वेट इज 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3। तो क्या आंसर आएगा इसका? 7 7। सर ये या आएगा 2 raised to 3 तो मैं यहीं दिख रहा है मेरे अच्छा को। अच्छा 2 3 है। ओके Sir, ओके हाँ, got it। 11 आएगा। कितना आएगा? 9 9 कह रहे हो? 11 गलत, 11 गलत। 11 is the correct answer. 11. देखो ना, 1 into 2 raised to power 3 plus 0 into 2 raised to power 2 plus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 0. So 1 plus 0, sorry, 8 plus 0 plus 2 plus 1, 1 coming out to be 11. तो अब कैसे लिखोगे आप इसको? 1011 which is given to us in binary is equivalent to what? 11 in decimal. अब इसी का उल्टा करते हैं, लेट्स से कि आपको 11 गिवन है क्वेश्चन में एंड कहा है कि निकालो इट्स बाइनरी, तो क्या करोगे? 11 को लो, एलसीएम लेंगे ना अभी। हाँ जी, हाँ रिमाइंडर बिल्कुल कर देंगे उसे ना। डिवाइड करो, 2 5s are 10, रिमाइंडर कितना है 1, देन अगेन डिवाइड 2, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0, 2 0s are 0, रिमाइंडर 1, एंड रीड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, तो क्या आ जाएगा? 1 1011। सर ये लास्ट में जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करवाते हैं सर? ये हमने तब तक करना जब तक नीचे क्वेश्चन 0 नहीं आता। अगर नहीं करना है इसको तो उसकी एक ऑप्शन और भी है, क्या करो आप, जैसे ये डिवाइड करो ना, यहाँ पर 2 5 से 10 1 लिखा, फिर 2 2 4 1, 2 1 से 2 0। तो अगर आपने नहीं करना नीचे तो आपको ऐसे रीड करना पड़ेगा, फिर एक ही बात है। ओके सर ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने कहा कि वहां तक 0 ले आओ, सीधा नीचे ऊपर रीड करो, इट्स योर चॉइस, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. Let's try to compute the binary of number 235. आपको given है in decimal number system and I want its equivalent binary. निकालो शाबाश फटाफट. This you will solve. सर 19 कितना आया? बोलो. सर 11010011.
लेट्स चेक इट हाँ आउट। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है सबका? यही है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 2 to the 4 9 0 2 1 4 1 2 7 0 2 3 सर ठीक 1। है ये। ठीक है, मान लें? चलो मान लेते हैं। ठीक है, अब नहीं गलत आ रहा है तो मेरे तो कुछ हो रहा है। अरे यार, अरे देखो हाँ मैंने वहाँ क्या पर गलती नहीं करी? वहाँ वहाँ ट्रिपल पर वन जीरो गलती वन कर दी। जीरो वन वन। क्या आया? अरे यार 1110101 3-1 आएंगे स्टार्टिंग में। रीड यहाँ से करना है। 3 आएगा। 1110101 3 बार ये नहीं, जो आएगा। मैंने किया ये ठीक है गलत है बताओ? ये सर ठीक है। सर ये तो लिख सर सही है। अगर ये ठीक है तो फिर आपने जो बताया वो तो गलत आ रहा है कुछ। सर सर आपको वो वाली पहले सही है। एक सर वरना नीचे वाला वाला है। ठीक है। आपने जो बताया ना इसमें, यहाँ पर कुछ गलती की है आपने बीच में, देखो। यस सर। ठीक है, सबका ये आ रहा है अब? यस सर यही आ रहा है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये नंबर गिवन है, अब इसका निकालो आप। 1110101 तो कैसे करेंगे? 01 वेट का मल्टीप्लाई 10 is to 0, 6 सॉरी 2 is to 0, 2 is to 1, 2 is to 2, 3 4 5 6 7। सर ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है? 235 ही आ रहा है। यस सर। वेरी गुड। सी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपके पास बेस्ट तरीका क्या है, चेक कर लो ऐसे, आपको श्योर हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। सर इसका क्वेश्चन आएगा? क्या आएगा? सर इसका क्वेश्चन आएगा? कोई एग्जाम इसके बिना बनता ही नहीं है। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम लो, कहीं पर भी जाओ, एमएसटी में तो एमएसटी में तो अगर सिलेबस में होगा तो डिफरेंट बात नहीं है, अदरवाइज तो क्वेश्चन हमेशा होता है कन्वर्जन का, कोई भी नंबर सिस्टम का आ सकता है। एक तो पक्का। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? अब मैं आपको Yes, sir. बताता हूँ कि अगर आपको नंबर मान लो ऐसा गिवन हो 11.011, अब इसको बोलता हूँ कन्वर्ट करो इनटू इट्स डेसिमल, तो क्या करोगे? ये तो आपको आता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 2 की पावर सर 0 है। उसके माइनस से कर देंगे पावर 0। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो इट विल 2 raised to -1, 2 raised to -2, -2 -3। 2 raised to -3। निकालो कितना आएगा? तो 3.375 3.375 सबका इतना आ रहा है? यस सर। चलो यस चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं Yes, इसको sir. भी। अब इसमें क्या करना है देखो, आपको ये तो आ गया मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर कैसे करोगे? तो इसमें एक तरीका क्या है कि जब हम जो हमारा ये पॉइंट के लेफ्ट वाला पोर्शन होता है ना, उसको तो आपने ऐसे डिवाइड करा 2 से, 2 1 से 2 किया, 1 रिमाइंडर आया, 2 0 0 और यहाँ पर आपका 1 आ गया। लेकिन जो राइट में होता है इसको क्या करोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आई अगेन रिपीट, जो आपका फ्रैक्शन के राइट वाला पोर्शन है ना 0.375 वाला, इसको आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड व्हाट यू हैव टू राइट डाउन? यू हैव टू राइट डाउन द क्वोशिएंट हियर, जो इंटीजर वाला पार्ट है, सॉरी नॉट क्वोशिएंट, इंटीजर वाला पार्ट। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, कितना आएगा बताओ मुझे? करो मल्टीप्लाई 2 से। 850 है 850, 0.75 0.75 0.75 सर। 0.75। अब ये 0.75 इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ गया? 1.5 1.5। अब 1.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 3 आएगा। एक मिनट, हाँ 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 ही आएगा सर। राइट राइट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन।
हाँ सॉरी, हमने क्या गलती करी, अब यहाँ पर जब आपके पास जो ये आ गया ना क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन करो इंटीजर पार्ट, इसको नोट करो, ये कितने पहले 0 है, सर उसके 0 लिख दिया, सर मल्टीप्लाई वो कम करके लिखना ना एक आगे। वही बता रहा हूँ, जो आपका ये 1 आ गया ना, जब इसकी इस 1 को यहाँ नोट कर लो Yes, और ये यहाँ से रिमूव कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे आप, यस तो जब यहाँ करो कितना आएगा 1.0, सर ये 0.5 से क्यों मल्टीप्लाई करा? वही बता रहा हूँ मैं आपको, जब आपने डेसिमल वाला पोर्शन को करना है 2 से मल्टीप्लाई, अगर तो आपका इंटीजर पार्ट आता है ना, तो इंटीजर पार्ट को रिमूव कर दो, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द डेसिमल पार्ट, तो 1 जो आपका आया इंटीजर वाला पार्ट, उसको लिखना है अपने आंसर में। अच्छा ठीक है, मतलब तभी वो 1.5 था ना, तो 0.5 कर दिया क्योंकि उसको 1 को Yes. रिमूव कर दिया। यस, तो ये 1 हमारा कहाँ आ गया, इट कम्स हियर, 0 ये वाला यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो 1 आया ये लास्ट वाला, ये कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब इसको जब रीड करना है, कैसे रीड किया आपने, देखो यहाँ से, देख रहे हो, तो जो आपका लेफ्ट में काम हो रहा था वो क्या था, नीचे से ऊपर आ रहे थे आप, और 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऊपर से नीचे जा रहे हो आप रीड करने के लिए उसको। ओके, लेट्स तो टेक वन मोर मतलब क्वेश्चन। जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी बारी हमें उसको मल्टीप्लाई उतनी करना बारी पड़ेगा। करते हैं जब तक आपके पास जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो 0 नहीं हो जाता। ओके सर। हाँ, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सर हर बार 2 से मल्टीप्लाई करना सर? यस, अगर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर दूसरा है कोई ऑक्टल वगैरह है तो उससे करो अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेट्स टेक नंबर 0.625, इसका निकालो। जरूरी रहेगा। कितना आ गया? 0.10 1 सबका ही आ रहा है? 0.10 Yes, sir. यस सर। लेट इट चेक। तो क्या करोगे, 1 into 2 raised to power -1 प्लस 0 into 2 raised to power -2 प्लस 1 into 2 raised to power -3, तो ये कितना हो गया, 1/2 is 0.5 प्लस 1/8 कितना होता है, 0.125। तो ये तो सेम नहीं आया, तो 0.62 है, ठीक है, मैं सर, ऊपर ये देख लेता, ठीक है, गॉट इट, मैं इसको देखने लगा था 0.37 को, ठीक है। ये क्लियर होगा सबको बाइनरी नंबर सिस्टम? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम के ऊपर, वो हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। सर ये हमें कब तक ऐसे 0 जो डेसिमल से जब हमें कन्वर्ट करना है तो हम कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 से? देखो उसमें 2 ऑप्शंस हैं, जब तक आपके पास ये वाला पोर्शन है ये 0 नहीं होता या रिपीट होना शुरू नहीं होता। रिपीट मतलब वही नंबर फिर से आ रहे हैं, जैसे मान लो, हाँ जी, लाइक 1.5 फिर से 1.5 तो आएगा नहीं सर जब मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं 1.5 नहीं आएगा बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास ये राइट वाला डिजिट है ना, मान लो आप जैसे लेट्स टेक सम एग्जांपल, इसमें रिपीट हो रहा हो, लेट्स टेक कोई नंबर 0.513 सपोज करो, कोई रैंडम नंबर ले लिया मैंने, अब 0.513 है, इसको आप कन्वर्ट करने बैठोगे अगर, करो जरा कितना आता है देखो, लेट्स डू इट। इसको 0.513 into 2 कितना आ गया, 1.026। यस सर। अब इसमें से 1 निकाल लिया हमने बाहर, अब करो 0.026 into 2 0.052 0.02 052 0.052 यहाँ पर 0 आ गया। अब 0.052 को मल्टीप्लाई करो 2 से,
0.104 0.104 यहाँ पर भी 0 आ गया। फिर 0.104 को मल्टीप्लाई करो 2 से 0.208 208, फिर 0 यहाँ पर आ गया। फिर 0.208 को मल्टीप्लाई करो 2 से 0.416 416, फिर 0 आ गया। फिर 0.416 को मल्टीप्लाई करो 2 से 832 0.832 फिर 0 आ गया। फिर 0.832 को मल्टीप्लाई करो 2 से 1.06 0.064, ये 1 यहाँ पर आ गया। अब 0.064 को मल्टीप्लाई करो 2 से 2.128 2 पॉइंट कैसे आएगा? 1 ने हटा देना बच्चे, ओके तो यहाँ आ गया हमारा। यस सर 0.128 जैसे आपके इंटीजर वाले पार्ट 1 आ गया, उसको उठा के आगे लिख दो। कितना आया? 0.128 0.128 0, फिर 0.128 into 2 0.25 सर ये 1.664 होना चाहिए। 1.664 664 कहाँ पर? इस वाले में? सर ये 0.832 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हाँ सर ये तो 1.664 होगा। सर Yes, sir. 664 है। तो चेंज कर दो इसको, 0.664 करो, बिल्कुल ठीक। अब कितना आएगा यहाँ पर? 1 पॉइंट, लेट मी इरेज इट, बताओ शाबाश कितना आएगा? 1.32 1.32 328। यस सर तो यहाँ पर भी बना देगा, इसको भी इरेज करो यहाँ से। इसमें भाई ये ध्यान रखना, जैसे अभी हम कर रहे थे गलती, एक स्टेप में गलत हो सारा की सारी पूरी चेन गलत हो जाएगी, तो आंसर कभी नहीं मैच करेगा। अब कितना आया? 0.656 तो देखिए अब यहाँ पर ये एंडलेस है, कुछ कोई एंड नहीं है इसका, हमें दिख नहीं रहा कि कहीं पर जाके भी वो 0 होने वाला है, राइट? तो उसके केस में क्या होता है, वी विल कीप अप टू 4-5 डेसिमल प्लेसेस एंड वी कैन लीव इट। कोई ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद ना, जैसे आपको पैटर्न दिख रहा है ना 100, कुछ में क्या होता है कि 10001 आए, फिर दोबारा से ऐसे पैटर्न है 10001, फिर 10001, तो ऐसा आता है, तो उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं, एक तक ये कोई हमारे पास सेट रिपीट हो रहा है ना बार बार, और यहाँ पर तो एंडलेस है, तो वी नीड नॉट टू डू अप टू, पता लगे पूरे बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी खत्म नहीं होगा ये, राइट? सो कीप इट अप टू 5 to 6 places, दैट्स सफिशिएंट। सर तो इसमें क्या होगा 0.1000 बस? इसमें हाँ, इसमें आप जब इसे कर दिया तो आप लिखोगे 0.513 to the base 10 is equivalent to 0.10000011, जितना निकाल लिया आपने, ऐसे छोड़ दो, ये चल रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी आगे। क्लियर? तो सर ऐसे केस में तो वो इसको कंप्यूट ही नहीं कर सकते फिर हम कभी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन का पूरा फाइनल आंसर निकालो, अब इसमें पॉसिबल ही नहीं तो कैसे निकालोगे बताओ? ओके सर। है ना, ऐसे अगर करते रहोगे जितना मर्जी करते रहोगे 2 से मल्टीप्लाई, कभी खत्म नहीं होगा नंबर। ठीक है, तो नथिंग टू वरी फॉर, आपने 4-5 प्लेसेस तक निकाल लो, 6 निकाल लो, जहां तक आप लोग मान लो सारे 0 आ जा रहे हैं, एक और 1 दिखा दो आगे तक कब तक आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें मैंने क्या बताया था, बेस कितना होता है इसका? 8 और नंबर्स कहां से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखो 0 to 7 हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा इसका आफ्टर 7? 8 नंबर कैसे लिखा जाएगा सर? 1 नहीं, थोड़ा और सोचो, जस्ट फॉलो योर डेसिमल नंबर सिस्टम। 10 यस, 10 नेक्स्ट क्या आएगा नंबर? यस 11 1 11 12 17 14 15 16 17 2 अब क्या आएगा? 20 20। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि ये नंबर है क्या क्या? अगर मैं पूछूं आपसे ये नंबर क्या है? 11 कैसे निकाला? यहाँ 7 हो गया, दिस इज माई 8 9 10, तो नंबर 10 हुआ, 11 कैसे हुआ? सर डेसिमल हो गया ना 11। आप बताओ, देखो 0 से 7 तक तो आ गया आपका, है ना? 7 तो नॉर्मली डेसिमल में होता है,
8 कैसे हुआ? 8 is written as 1 0, 9 is written as 1 1, 10 is written as 1 2, 11 is written as 1 3. 3. 2 का डिफरेंस आ रहा है। हमने यहाँ पे कुछ स्किप किया क्या? सही तो है सर। हाँ ठीक ठीक है, है बिल्कुल सर। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर हमने कैसे निकाला? देखो कि या इस वाले डिजिट का वेट कितना हो गया? 8 raised to power 0. इसका वेट कितना हो गया? 8 raised to power 1. 1 तो इसका मतलब क्या? अगर मैं आपको कोई नंबर दूं 2 1 3 to the base 8, सर ये 8 raised to the power 3 into 8 raised to the power 1 into 8 raised to the power 2 होगा। बिल्कुल। तो ये जो नंबर सिस्टम है, अगर आपको गिवन किसमें, इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको कन्वर्ट करना है अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो क्या करूंगा मैं? 2 into 8 raised to power 2 plus 1 into 8 raised to power 1 plus 3 into 8 raised to power 0. तो कितना आ जाएगा? निकालो। 64 into 128 128 plus 8 plus 3 कितना हो गया? 139 तो मेरा आंसर ये बन जाएगा। तो इट मींस जो 213 ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर था, वो इक्विवेलेंट किसकी है? 139 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके सर। यस सर। अब इसका उल्टा करते हैं। आपको 139 गिवन था, अब कहते हैं इससे निकालो टू द बेस 8। अब क्या करना है? सेम जैसे बाइनरी में किया था, Divide by 8. 139 को 8 से डिवाइड 8 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात। लेट्स डिवाइड इट। 8 1 is 8, 59, 8 7 is 56, रिमाइंडर कितना आ गया? सर 3 8 2 is 16, रिमाइंडर 1, 8 0 is 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। रीड करो ऐसे, तो आंसर क्या आ गया? 2 1 3। वही लिया था मैंने पीछे। क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और करते चलो। लेट्स टेक अ नंबर 2 6 5 3 to the base 10. इसका निकालो टू द बेस 8 में। 2 6 5 3 बेस 10 में जब भी क्वेश्चन करो ध्यान रखना है, अगर तो नंबर डेसिमल में गिवन है और कन्वर्ट कर रहे हो आप ऑक्टल में, तो क्या करोगे? डिवाइड करो 8 से, क्योंकि 8 पे कन्वर्ट करना है। अगर ऑक्टल में गिवन है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 8 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई। यस। 5135 5135 5135. सबका ये आ रहा है? 5135 यस सर। यस सर चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 8 से डिवाइड किया पहले, 8 से 24 25, 8 से 24 8 3 4 1 5 आ गया यहाँ पर। यस सर। देन 8 4 32 11, 8 1 is 8, 3 आ गया। 8 5 is 40, 1 आ गया। 1 रिमाइंडर 8 0 0, 5 रिमाइंडर। बिल्कुल ठीक निकाला, वेरी गुड। अब अगर मान लो नंबर गिवन है आपको 0.25 in let's say decimal number system and I want an equivalent octal, तो क्या करोगे? 2 into 1/8 सर पहले इसमें वही करेंगे। सर 2 पावर into 1/8 नहीं करना। वही करेंगे 2 जो into 10 2 is into power 1/8 कह रहे हो, 8 वेट वेट Into वेट में। लिसन, जो आप 8 2 multiply into by 8 1/8 वो कब करते हैं? अगर आपको गिवन होता ऑक्टल के अंदर। यहाँ तो गिवन डेसिमल में है ना, सर इसको पहले 8 से डिवाइड करेंगे 0 को, फिर डिवाइड नहीं 0.2 करेंगे, यहाँ पर सर मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 1 आ जाएगा। हाँ, तो 0.25 अच्छा into वही 8 चीज 8 इंटीग्रल पार्ट कितना आया? निकाल सर 2। 2.0 आ गया। यस सर। अब आगे 0 को करने जो थी सिंपल, ये आ गया 0.2। अब इसका उल्टा करते हैं, सर हमने 0.2 पे क्यों रोक दिया उसे? क्योंकि 0 हो गया ना। देखो आगे ये तो 0 हो गया। अच्छा ठीक है अब ठीक 0 है को जितने मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो 0 आता रहेगा। आगे 0 लगा लो, लगाने तो ये लो, जितने मर्जी लगा लो। ओके सर। ठीक है। सो नाउ लेट्स से 0.8.2 गिवन है टू द बेस 8। अब मैं कहता हूँ कि इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल, तो क्या करोगे अब? सर 8 into -2 2/8 2/8 2/8, so means 2 into 8 raised to power -1 -1 यस सर। कितना आ जाएगा?
2/8 means 1/4. That is 0.25. 0.2. आ गया वही चीज. हम्म. Okay, now let's try to write down the octal number system only. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, if I ask you that, if I want to write number 7 in binary, how many bits I required? 3. 3 bits. Why? कैसे निकाला आपने? कि आपको पता है कि अगर बेस आपका 8 है, 8 means what? 2⁻3. सर तो बिट्स क्या होती है? 3 bits. बिट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने निकाला ना, ये आपका 7 लिखा, 7 का पहले निकालते हैं, बताता हूँ. 7 को निकालो पहले जरा इन बाइनरी. 2 3 6, 1. 2 1 2, 1. 2 0 0. कितना आ गया? 1. 0. तो कितना आ गया? 1 1 1. हाँ. तो इसको मैं लिखूंगा 1 1 1. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 1 1 लिखा है, इट मींस दीज आर द 3 बिट्स required to represent number 7 in binary. ओके सर. तो ये मैंने अब क्या किया आपके सामने, ये जो कन्वर्शन करी है मैंने, कौन सी करी है? फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी. उससे पहले हमने क्या की थी? ऑक्टल टू डेसिमल करी थी. देख रहे हो? सर सब में थोड़ी ना 3 बिट्स यूज होंगे सर. सब में नहीं होंगी. मैक्सिमम कहने का मतलब क्या है कि जब मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम आएगा तो आई रिक्वायर एटलीस्ट 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट ऑल द ऑक्टल नंबर्स. ओके सर. अब अगर मेरे को मान लो 7 तक करना है तो 3 बिट्स आ गई. 0 को तो मेरे को कोई बिट्स चाहिए, लेकिन अगर 0 ऑक्टल में है, आई विल रिप्रेजेंट इट विद द 3 बिट्स. ओके. ठीक है पॉइंट. तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा? आई विल राइट 0 एज 0 0 0, 0 1 एज 0 0 1, 2 as 0 1 0, 0 3 as 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0. अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जो मैंने सीक्वेंस लिखी कैसे लिखी है, राइट? तो उसके लिए आप कैसे दिमाग में याद रखो, 2 की पावर 0 कितना होता है? 1. 2 की पावर 1 कितना होता है? 2. 2 की पावर 2 कितना होता है? 4. तो ये क्या बन गया? 4 2 1 बन गया. यस सर. सो अब मैं इसको लिखता, मैं सिंपल लिखूंगा 4 2 1, अपने दिमाग में रखूंगा. अब मुझे नंबर लिखना, मान लो 6, तो 6 कैसे होता है? 4 + 2 और 1 नहीं चाहिए, 0 कर दो. ओह वाह. ओके. अगर मुझे नंबर लिखना है 5, तो क्या होगा? 4 और 1 चाहिए, ये नहीं चाहिए, 0 हो जाएगा. ये 5 हो गया. मुझे नंबर लिखना है 3, 3 के क्या चाहिए? 2 और 1 चाहिए, 0 ये नहीं 1 चाहिए 1. मेरे को. मुझे नंबर चाहिए 4, 4 रखो, बाकी 2 0 कर दो. 1 0 0. तो इट मींस ये 4 to 1 सिस्टम दिमाग में रखो. जो भी नंबर चाहिए आपको 7 तक निकाल सकते हो आराम से. अब इसी तरह इसको और एक्सटेंड करते हैं. कैसे एक्सटेंड करते हैं? लेट्स टेक 8 4 2 1. क्योंकि ये कितना होगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0. 0. अब माइंड में रखो 8 4 2 1 सिस्टम. 3 2 1 0. 8 4 2 1, अच्छा हाँ. है ना? अब काउंटिंग लिखते हैं 0 से लेके कहां तक आई काउंटिंग इसमें? 15 तक. सो 0 से लेके 15 तक काउंटिंग लिखते हैं. सो 0 लिखना तो इसका मतलब क्या सारे 0 हो गए? यस सर. 1 के लिए क्या होगा? सिर्फ 1 वाला 1 होगा, बाकी क्या होंगे? 0. 2 के लिए क्या होगा? सिर्फ ये वाला 1 होगा, है ना? 3 के लिए ये दोनों 1 होंगे. 4 के लिए सिर्फ ये 1 होगा, बाकी सब 0. 5 के लिए 4 + 1 चाहिए मेरे को, तो 4 1 कर दिया और 1 1 कर दिया. इसी तरह कंप्लीट करो. 6 के लिए 4 + 2, 7 के लिए 4 + 2 + 1, 7 8 के लिए 1 ये कर दिया, बाकी तीनों 0 कर दिए. 9 के लिए 8 + 1 कर दिया. 10 के लिए 8 + 2 कर दिया. 11 के लिए 8 + 2 + 1 कर दिया. 12 के लिए 8 + 4,
13 के लिए 8 + 4 + 1, 14 के लिए 8 + 4 + 2, 15 के लिए 8 + 4 + 2 + 1। बस हो गया सर? यस सर। यस तो सर। कोई भी नंबर आपको आए, आप एकदम लिख सकते हो कि डी काउंटिंग। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि हमें जब डिजिटल में हम बहुत सारे सर्किट्स पढ़ेंगे, आगे सर्किट्स भी कराएंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे, तो आपको काउंटिंग में लिखनी आनी चाहिए सीक्वेंस। तो उल्टी पुल्टी नहीं लिखना, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे केएमएफ वगैरह पढ़ेंगे तो आपको काउंटिंग में ही सब कुछ चाहिए होगा। तो आपको ये दिमाग में रहे कि अगर 3 बिट्स है तो 4 to 1 रखो दिमाग में, 4 बिट काउंट लिखनी है तो 8 4 2 1, 5 बिट कर दो 16 8 4 2 1 कर दो। ये आपके ऊपर है, ये आपको मैंने शॉर्टकट बताया है अभी। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं 0 to 15, ये किस नंबर सिस्टम में होंगे? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अब मैंने क्या बताया था आपको, इन हेक्साडेसिमल वी राइट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आफ्टर 9 वी राइट A as 10, B C D E F। तो F का मतलब 15, E का मतलब 14, D का मतलब 13, C means 12, B means 11, A means 10। Right? Now, if I give you a number 2A3 in hexadecimal number, and I ask you to convert into a decimal, तो क्या करोगे बताओ मुझे? पहले मतलब वही सर, कर 2 into 16 to the power करेंगे 2। और A को 10 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। 10 तो कैसे लिखेंगे? 2 into 16 is to power 2 2 2 plus plus 10 into A 16 is to power 1 1 plus 1 3 3 into into 16 1 is to power। 0। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया? 64 प्लस 64 कैसे हो गया? सर 32 दूनी 64 होता ना। 32 कहाँ से है? 500 अच्छा 16 की सर, अच्छा ठीक है 60 स्क्वायर है भाई। यार ठीक है ये टू ठीक डिवीजन है। करना है 16 into 2 32 512 512 सर 512 आ 500 गया 512 plus 160 प्लस 160 160 plus 3 प्लस 3 कितना हो गया? 685 680। 80 कैसे आ गया? 675 675 675 ध्यान रखो यार। 675 आएगा। हाँ 675, ये किसमें हो गया? बेस 10। 10 में डेसिमल में। डेसिबल। राइट। और देखते क्वेश्चन। लेट्स टेक अ नंबर 3FB2, बस इतना ही बहुत है, टू द बेस 10 में कन्वर्ट करो। थ्री आएगा 2 आएगा? 3 आएगा सर। 3 सर आएगा 3 ठीक है। 15 into 16 ये कितना होगा? B is equal to 11 11 सर। कितना आया? 16306 यस सर 16306 बेस 10। बेस सबका ही आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर अच्छा इसका यही आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये कैसे करेंगे हम चेक? सर यही हम डिवाइड बाय 16। देंगे वेरी गुड। और जो रिमाइंडर आएगा तो फिर हम वो भी अगर वो वो 9 डाल से दिया बड़ा आया बिल्कुल तो ठीक उसको बात, ABCD में। बिल्कुल ठीक बात। 16306 डिवाइड बाय 16। चलो बताओ, 16 1 16 0 1 to 16 146 16 9 144, कितना रिमाइंडर आया? 2
यस सर। देन अब किसमें जाएगा 16 था 16 यस सर 16 6 59 आ गया। देन अब किसमें जाएगा 16 3 दे तो कितना आया बताओ 59 था हमारे कितना था हमारे पास 50 59 था 16 3 था 48 48 11 है क्या 11 11 किससे इक्वल है बी लिख देंगे। बी बी फिर 16 डिवाइड किया सर किस पे ये जाएगा से 2 नहीं 3 से 48 तो 63 माइनस 48 करो कितना आ गया 15 आएगा। 15 इज इक्वल टू एफ एफ 3FB2 आ गया वही सेम यस सर। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई डाउट हाँ सर। तो अभी फिर यही स्टॉप करते हैं टाइम हो गया आपका है ना हम इसी को और कंटिन्यू करेंगे अभी अभी आपने सिर्फ कुछ कराया है अभी थोड़े और नंबर सिस्टम करेंगे डिटेल में जिसमें हम किसी भी नंबर सिस्टम में किसी में कन्वर्ट कर ले मान लो आपको डेसिमल में गिवन है आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना है फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि मान लो आपको हेक्सा में गिवन है सीधा बाइनरी में निकाल दो शॉर्टकट में राइट तो अभी तक के लिए जितना हमने किया जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट राइट नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको और फिर सर F16 होता ना हमारा 16 कहाँ होता है A B C 15 D 15 E देखो F यहाँ ध्यान से देखो 0 से अच्छा 10 से A शुरू करते हैं ठीक है 16 ठीक है नंबर्स ठीक होते है हैं ओके सर ठीक है 0 से ओके हाँ तो ये यार को जनरल क्या है कि अगर मान लो मेरा बेस n है तो टोटल नंबर कितने होंगे 2 raised to power n और रेंज क्या होगी 0 to 2 raised to power n minus 1 जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा n 16 है सॉरी n मैंने कहा n इज द नंबर ऑफ बिट्स सॉरी -1 हाँ ये नंबर ऑफ बिट्स लिख रहा हूं मैं तो अगर आपके पास 4 बिट्स है base 2 raised to power 16 is equal to sorry 2 raised to 4 is equal to 16 है ना तो ये n हमारे पास क्या हुआ 4 तो हमारा टोटल लेवल्स कितने 16 लेवल्स है तो कहां से कहां तक 0 to 2 raised to the 4 minus 1 it means 0 to 15 likewise for the octal 0 to 2 raised to the power 3 minus 1 likewise for decimal कितना होगा 0 to 9 likewise for binary कितना होगा 0 to 1 बाइनरी खाली एक बिट की हुई हाँ ठीक है let's Okay, stop sir. it now let me take your attendance हमारी लास्ट क्लास कब हुई थी परसों हुई थी ना यस सर यस सर इसकी अटेंडेंस नहीं दिख रही मेरे को नहीं चलो अभी आज की ले लेते हैं आज होगी 20th अटेंडेंस बोलो गुरमिंदर सर अनुपम अरुणिमा भव्य दिवजोत प्रेजेंट सर सहजदीप दीक्षा अर्शदीप फ्रेंड सर जितेंद्र अनग फ्रेंड सर अनिकेत
Present, sir. Sujit, Karanjot, just wait.